આપની કંપની હું વિક્રમ પાઠક શરૂઆત કરીએ મુખ્ય સમાચારો સાથે। બજારમાં નવા હાઈ બનાવ્યા બાદ ઉપરના સ્તરેથી ઘટાડો, નિફ્ટી સેન્સેક્સમાં દબાણ, મિડ કેપમાં આવી સામાન્ય ખરીદદારી તો બેંક નિફ્ટીમાં હજુ અડધા ટકાની મજબૂતી। ઓગસ્ટમાં બજાજ ઓટોનું વેચાણ 5% વધ્યું, સ્થાનિક વેચાણમાં ઘટાડો પરંતુ એક્સપોર્ટમાં 18%નો ઉછાળો, ત્યાં જ એસ્કોર્ટે ગત વર્ષ કરતાં 22% ઓછી ગાડીઓ વેચી। ઓક્ટોબર સિરીઝથી એફએનઓમાં સમાવેશના પગલે ઓબેરોય રિયલ્ટીમાં આજે 9%ની જોરદાર તેજી તો ઇન્ડિયા સિમેન્ટમાં 4%ની ખરીદદારી। એફએનઓમાં સામેલ સ્ક્રિપ્ટની સંખ્યા વધીને થશે 181। આજથી લાગુ થયું પીક માર્જિનનું છેલ્લું ચરણ, ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ માટે પણ જરૂરી હશે 100% અપફ્રન્ટ માર્જિન, કોઈ પણ બ્રોકર નહીં આપી શકે 5 ગણાથી વધુ લેવરેજ। એફએનઓના ઇન્ટ્રાડે સોદામાં પણ આપવું પડશે નોર્મલ માર્જિન। બે નવા આઈપીઓ આવવાથી પ્રાઇમરી માર્કેટમાં વધ્યું એક્શન, વિજય ડાયગ્નોસ્ટિકનો ઇસ્યુ અત્યાર સુધીમાં 10% ભરાયો, ત્યાં જ એમી ઓર્ગેનિક્સના આઈપીઓ અડધો ભરાયો, 3 સપ્ટેમ્બરે બંધ થશે બંને આઈપીઓ। આના સાથે જ સૌપ્રથમ પહેલા ભારતીય બજારો પર નજર કરીએ તો સતત 2 દિવસના નવા હાઈ બનાવ્યા બાદ આજે પણ ઇન્ટ્રાડે બેઝ પર એક નવો હાઈ બનાવી અને બજાર નીચેની તરફ ટ્રેડ કરતું દેખાઈ રહ્યું છે। સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંનેના ફ્રન્ટ ઉપર જુઓ તો ત્યાં આપણને થોડોક દબાણ તરફનો કારોબાર આગળ વધતો દેખાયો છે, પણ બેંક નિફ્ટી અહીંયા આપણને સારી એવી મજબૂતી જે છે તે મેન્ટેન કરતું દેખાઈ રહ્યું છે। કદાચ ગઈકાલે જે મૂવ નહોતો આવ્યો એના ભાગરૂપે આજે આપણે જોઈએ તો બેંક નિફ્ટીની સરખામણીમાં આપણને મજબૂત રહેતી દેખાઈ રહી છે, પણ ઓવરઓલ સિનારીઓ જુઓ તમે ઇન્ડાઇસીસના ફ્રન્ટ ઉપર અત્યારે આપણને થોડા પ્રોફિટ આવતો દેખાઈ રહ્યો છે અને વ્યાજબી પણ છે। આપણે બહુ જ ઝડપથી અહીંયા 17,200 તરફના લેવલ તરફ આવ્યા હતા તો ત્યાંથી આપણને થોડુંક એક પ્રોફિટ ટેકિંગ આવે એ અહીંયા કોઈ વધારે ચિંતાનો વિષય બનતો નથી દેખાયો। સ્ટોક સ્પેસિફિક એક વખત નજર કરી લો ત્યારબાદ આજના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે ચર્ચા આગળ વધારીશું। એક વખત એશિયન પેઇન્ટ્સ, એક્સિસ બેંક, આઈશર મોટર્સ અને ઇન્ડસ ટાવરના કાઉન્ટર છે જે અત્યારે આપણને નિફ્ટીના મેજર ગેઇનર તરીકે સામે આવી રહ્યા છે, તો બજાજ ફિનસર્વ, ટાટા સ્ટીલ, એચડીએફસી લિમિટેડ અને વેદાંતા તેમજ ટીસીએસ જેવા કાઉન્ટર છે જે અત્યારે નિફ્ટીને નીચેની તરફ બ્રેક કરતા દેખાઈ રહ્યા છે। તો આ બધા કાઉન્ટર્સ ઉપર આજે આપણે દિવસ દરમિયાન પણ નજર રાખતા રહીશું અને આજના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે આગળ વાત કરીશું। આજે આપણી સાથે ચર્ચામાં જોડાશે ગલ્ફ ઓઇલ લુબ્રિકન્ટ્સના મનીષ ગંગવાલ અને એમની સાથે આપણે વાત કરીશું કંપનીના પરિણામો ઉપર અને આગામી આઉટલુક બિઝનેસનું કેવું દેખાઈ રહ્યું છે, પ્લસ ક્રૂડ પ્રાઇસીસના ફ્રન્ટ ઉપર આપણને જે એક્શન દેખાઈ રહી છે એને આપણે કેવી રીતના જોવાની રહેશે એના ઉપર ખાસ વાત કરીશું। तो मनीष जी स्वागत है सर सीएनबीसी बाजार में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें आंकड़ों के ऊपर तो ऑपरेटिंग मार्जिन के फ्रंट के ऊपर हमने देखा है कि आपने एक स्टेबिलिटी रखी है, लेकिन पेट जो है वो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रो होता हुआ दिखा है ईयर ऑन ईयर बेस पर। किस तरह से आप इसको एनालाइज कर रहे हैं, क्या फैक्टर रहे इस बार ऑपरेटिंग मार्जिन को यहाँ पे स्टेबल रखने के लिए? हाँ जी, तो एक आपने देखा होगा कि हमारे क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें हमारी 57% वॉल्यूम ग्रोथ रही है और नियरली 77% पैट ग्रोथ रही है। ऑफ कोर्स लास्ट ईयर जो पहला क्वार्टर था वो काफी कम था बिकॉज लॉकडाउन काफी स्ट्रिक्ट था, पर इस बार काफी B2B और सब इंडस्ट्रीज खुली हुई थी, रिटेल में थोड़ा इम्पैक्ट था, तो इसके चलते हमारे मार्जिन क्वार्टर 1 में जो यूजुअली हम 15 से 17% इबिटा मार्जिन डिलीवर करते हैं वो हमारे थोड़े कम थे, क्योंकि रिटेल जो एक मेजर सेगमेंट है और जहां पे मार्जिन अच्छे हैं वो काफी हद तक बंद था अप्रैल और मई में सेकेंड वेव के चलते। अब वो सारे मार्केट जून ऑनवर्ड्स खुल चुके हैं और हम नियर नॉर्मलसी पे हैं जो हमारा ओवरऑल बिजनेस है इन सारे सेगमेंट्स में, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब आने वाले क्वार्टर्स में हम मार्जिन भी रिकवरी करेंगे, क्योंकि क्रूड भी एक स्टेबल हो चुका है। आपने देखा होगा क्रूड ऊपर में $73-74 से अभी $68 पे है, तो ये क्रूड भी एक स्टेबल हो रहा है और उसके साथ हमारी जो इनपुट कॉस्ट है, जो लागत रॉ मटेरियल कॉस्ट है बेस ऑयल वगैरह की, वो भी अब स्टेबलाइज हो गई है, तो हम देख रहे हैं कि आगे चल के हमारे मार्जिन्स बेहतर होंगे। ओके सर, इसके साथ साथ और 2-3 चीज़ हम आपसे समझना चाहेंगे। पहले मैं थोड़ा एक बिजनेस एनवायरनमेंट जो अभी शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है उनके ऊपर एक आपसे समझना चाहूँगा। क्रूड प्राइसेस जिस तरह से हमने देखा है कि शार्प राइजिंग साइड पे आती हुई दिखी है और आगे जाके हम देखें कि यहाँ पे सिचुएशन जो है वो ओवरऑल यहाँ पे क्रूड प्राइसेस की बढ़ती हुई दिख रही है, तो आपके भी जो लुब्रिकेंट्स है वहाँ पे इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, तो किस तरह का आउटलुक यहाँ पे देख रहे हैं? क्या कोई प्राइस राइज
की सिचुएशन भी हम देख सकते हैं? तो हमारा जो मेन रॉ मटेरियल सर वो बेस ऑयल होता है जो क्रूड से निकलता है, और वो इस बार क्या डिमांड सप्लाई की वजह से पहले ही काफी बढ़ चुका है। फ्रॉम राइट लास्ट ईयर अक्टूबर से ये प्राइस बेस ऑयल के काफी बढ़ रहे थे, जो कि अब मई जून में जाके स्टेबलाइज हुए हैं। और इस बीच जो कॉस्ट इंक्रीज हुई, हमने काफी प्राइस इंक्रीज ली है मार्केट में। हमारा जो रिटेल सेगमेंट B2C है उसमें हमने दिसंबर से जून तक में 4 प्राइस इंक्रीज ऑलरेडी ले लिए हैं। तो हम जो जो बढ़ी हुई कीमत जो कॉस्ट है वो हम ऑलरेडी पास ऑन कर चुके हैं कंज्यूमर्स को, और उसका इफेक्ट जो है वो अब हमको आने वाले क्वार्टर्स में नजर आएगा, क्योंकि वो इन्वेंट्री रहती है एक डिस्ट्रीब्यूटर की, चैनल में पाइपलाइन रहती है इन्वेंट्री की, तो उसका इफेक्ट आने में थोड़ा समय लगता है। बट हमने जो प्राइस एक्शन लिए हैं B2B और B2C दोनों में, वो सफिशियंट है अब जो कॉस्ट इंक्रीज हुई है उसको कवर करने के लिए। और आगे हम देख रहे हैं कि क्रूड अब एक लेवल पे स्टेबल है, और हम यहां से उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा बेस ऑयल यहां से और नहीं बढ़ेंगे, और हमारी जो इनपुट कॉस्ट है वो अब स्टेबल रहेगी। ओके सर, एक और चीज़ समझना चाहेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग स्टेशन है उनके स्टार्टअप में भी एक इन्वेस्टमेंट किया था, और आपकी जो पेरेंट कंपनी है वो यहाँ पे ऑलरेडी जो ईवीज और हाइब्रिड है उनके लिए लुब्रिकेंट्स बनाने की एक पूरी रेंज है उनके पास। तो यहाँ पे किस तरह के हम बिजनेस ग्रोथ की उम्मीद रख सकते हैं? तो देखिए, हमारा ये मानना है और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट भी बोलते हैं कि जो कोर ल्यूब्रिकेंट बिजनेस है वो अभी अगले 10-15 साल तक ग्रो करने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो एक सेगमेंट आ रहा है वो सर्टेन पॉकेट्स में आएगा, सर्टेन कैटेगरीज में आएगा, और वहां पे हमारे पास में हम पूरी एक ईवी की वैल्यू चेन पूरी देख रहे हैं कि कहां हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चार्जिंग स्टेशन से लेके, जैसा आपने सही बताया कि हमने एक यूके की कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट किया है, और उनके चार्जर्स हम इंडिया में ऑलरेडी टेस्ट कर रहे हैं। अब जो कार के चार्जर्स हैं कि वो हमारे टेस्टिंग में ऑलरेडी ऑन है, कि हम उनको कैसे इंडियन एनवायरनमेंट और इंडियन पावर कंडीशन के साथ मैच करा के उसको एक पेनिट्रेट कर सकते हैं। हमारी एक डिस्ट्रीब्यूशन एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जहां पे हम करीब हमारे ऑल इंडिया 300 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और कम से कम भी नहीं तो 70,000 रिटेल टच पॉइंट्स हैं। हम कैसे इस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक व्हीकल वैल्यू चेन में भी यूज कर सकते हैं, इस पे हमारा काम काफी जोरों से चल रहा है। और हम उसमें सारे सेगमेंट देख रहे हैं, चाहे वो लिथियम आयन बैटरीज हो, चाहे चार्जिंग स्टेशन हो, चार्जिंग सेलिंग ऑफ चार्जर्स हो, तो हम ये सारे वैल्यू चेन को भी देख रहे हैं। जबकि ये हमारा मानना है कि ल्यूब्रिकेंट की ग्रोथ होती रहेगी, बट हम ये जो नई अपॉर्चुनिटी है इसमें भी हम पूरी तरह से पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हैं, और हम उसमें हर कंपोनेंट को देख रहे हैं। प्लस आपने सही बोला, हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो फ्लूइड की रेंज है, ई फ्लूइड जो बोलते हैं, वो भी हमारी पूरी तरह रेडी है पेरेंट के पास में, और हम उसको इंडिया में भी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। क्योंकि अभी हमारे पास क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉपुलेशन बहुत कम है इंडिया में, बट हम उस प्रोडक्ट्स को अभी से ही लॉन्च कर रहे हैं, ताकि जब भी कंज्यूमर को जरूरत हो वो प्रोडक्ट उनको अवेलेबल हो। राइट सर, बिजनेस ग्रोथ की मैं एक चीज़ खास समझना चाहूँगा टू व्हीलर सेगमेंट में, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि टू व्हीलर सेगमेंट का ओवरऑल ग्रोथ जो है वो हम अच्छा खासा देख रहे हैं। जो मंथ ऑन मंथ जो आंकड़े हमने देख रहे हैं ऑटो कंपनीज के, वहाँ पर भी हमने देखा है कि एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। आपका एक सेगमेंट जो है वो टू व्हीलर का बैटरी सेगमेंट में भी काम करता है। यहाँ पे किस तरह की हम ग्रोथ की उम्मीद रख सकते हैं? क्या आउटलुक इसके ऊपर आपका रहेगा सर? जी, हमने बैटरी टू व्हीलर के लिए बैटरीज एक लॉन्च करी थी आज के 5-6 साल पहले, और वो अभी हमारा एक जो बिजनेस है लास्ट ईयर काफी अच्छा ग्रोथ किया। इवन ड्यूरिंग कोविड पीरियड हमने उसमें 50% से ज्यादा ग्रोथ करी टॉप लाइन पे, और वो बिजनेस प्रॉफिटेबल हो गया है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी हम टू व्हीलर बैटरी सेगमेंट को एक यहाँ से और एक काफी अच्छी ग्रोथ पे लेके जाएंगे। अगले 3-4 साल के लिए हम उसका प्रोडक्शन भी अब इंडिया में करने की सोच रहे हैं, कि वो बैटरी अभी जो हम इंपोर्ट करते थे उसको हम अब इंडिया में बनाना चालू करेंगे अगले 5 से 7 महीनों में। और उसके बाद में हमारा उस पर फोकस और ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ लोकल सप्लाईज हम उसको काफी अच्छा से और कस्टमर को कैटर कर पाएंगे। और उसके साथ में हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सेगमेंट हमारा यहाँ से और 2-3 गुना और हो जाएगा अगले 2 से 3 साल के अंदर। तो ये हमारे लिए एक
एक और प्रॉमिसिंग सेगमेंट है जो हम उसको काफी क्लोजली वॉच कर रहे हैं और पुश कर रहे हैं उसको। ओके सर, तो ये सब चीज़ें देखने के बाद क्या हम मार्जिन एक्सपांशन की कोई उम्मीद रख सकते हैं? यहाँ पे मार्जिन ग्रोथ अगर हम FY22 के लिए देखें तो किस तरह से एंटिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, हमारा एक इबिटा मार्जिन का एक 15 से 17% का एक बैंड रहा है, 18% भी हुआ है कभी कभी, तो वो एक हम बैंड मेंटेन करके हम मार्केट शेयर लेने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो हम वॉल्यूम ग्रोथ करना चाहते हैं, कीपिंग द मार्जिन बैंड इंटैक्ट। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम अभी हमारा ओवरऑल मार्केट शेयर जो है एक 5 से 6% है लुब्रिकेंट इंडस्ट्री में, और बाजार सेगमेंट जो एक हमारा रिटेल सेगमेंट है उसमें हमारा करीब 7 से 8% है। तो हमारे पास में काफी स्कोप है हम हमारे मार्केट शेयर को बढ़ाने का। तो वो हम कोशिश में लगातार हैं कि, और हमने किया भी है, पिछले 10 साल में हमारे अपना मार्केट शेयर डबल किया है, और हम चाहते हैं कि हमारा फोकस ऑन वॉल्यूम ग्रोथ कंटिन्यू रहे विथ अ मार्जिन बैंड जो हम मेंटेन करना चाहते हैं। ओके साथ ही सर एक चीज़ मार्जिन के साथ साथ ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हम रेवेन्यूज के फ्रंट के ऊपर एक सिनारियो देख रहे थे FY21 के ईयर बेस पर अगर हम देखें तो रेवेन्यूज आपके सालाना हिसाब से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 44% थे, लेकिन अगर क्वार्टर के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट रहे थे। यहाँ पे क्या सिनारियो है? क्या जो सेकेंड वेव के चलते ये सिचुएशन रही थी या फिर और भी कोई फैक्टर रहे थे? नहीं, मेन कारण सेकेंड वेव का ही था, और जिसके चलते वॉल्यूम्स इंपैक्ट हुए, और जो मैंने बताया कि रिटेल सेगमेंट थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट हुआ था, क्योंकि इस बार जो सेकेंड वेव थी वो काफी रूरल इंडिया में भी काफी हद तक इंपैक्ट करी थी, और इसके चलते रूरल मार्केट्स भी काफी इंपैक्ट हुए, एग्रीकल्चर मार्केट इंपैक्ट हुए। तो वो जून ऑनवर्ड सब नॉर्मलाइज हो गया है, मोर और लेस 95% मार्केट सब ओपन है और रेगुलर काम हो रहा है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब आगे हमारा जो वॉल्यूम और रेवेन्यू ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो हमारा वापस से ग्रोथ पाथ पे अच्छा से काफी अच्छा रहेगा। ओके तो सर एक चीज़ ये भी बताया सर कि मार्केट शेयर का इम्प्रूव करने के लिए अगर हम देखें तो आपने ऑलरेडी आप एक्शन में है, मार्केट शेयर को आप अच्छे खासे एक ग्रो करने की फोकस में है, जैसे लास्ट टाइम भी आपने अपने डिस्कशन में बताया था। तो अभी हम देखें तो कौन से ऐसा सेगमेंट है, कौन से ऐसा वर्टिकल है जहां पे आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और एड स्पेंड के ऊपर भी कुछ डिटेल अगर शेयर कर पाए? तो हमारा फोकस तो B2C B2B दोनों को ही ग्रो करने का है, इक्वली हमारा इंटरनली डिस्कशंस ऑन दोनों पे ही होता है। पर अगर आप B2B सेक्टर देखें, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग को पुश कर रही है, जो आत्मनिर्भर भारत एक मिशन चालू हुआ है, और जो चाइना से मूव करके जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग लाने की बहुत जगह मल्टीनेशनल्स की एक वो चल रही है कि हम इंडिया में प्रोडक्शन शिफ्ट करें, तो उसके चलते हमें लगता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में काफी अच्छा ग्रो करेगा, और वहां पे जो लुब्रिकेंट की कंजम्पशन है वो भी काफी ज्यादा रहे और ज्यादा बढ़ेगी, और उसके चलते हमारा फोकस B2B सेगमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पे भी बहुत ज्यादा है। तो वो सेक्टर को पर्टिकुलरली हम बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं कि वहां पे हमारी ग्रोथ, और जैसे अगर हम नॉर्मल डबल डिजिट ग्रोथ करते आए हैं पिछले 10 साल में, CAGR 11% हमारा ग्रोथ रहा है, तो B2B में हम उससे और फास्टर ग्रो करें, ये हमारा एक और इंटरनल एक हमारा एक टीम के साथ में डिस्कशंस हो रहे हैं, और वो हम पुश करेंगे।